लेकिन आवाजें तो रविश मोमिन के लिए आ रही थी। और जब अल्ताफ अली सर किसी को आवाज देते हैं तो आवाज बहुत ऊपर तक जाती है। बहुत शुक्रिया अबुल्लेस अंसारी, कम्युनिकेशन मैन, आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कमेंट्री के लिए। बैक टू क्रिकेट, ऑन फील्ड अंपायर शानू कुरैशी एंड विक्रम नाइक, दीज टू आर द अंपायर्स। You are watching late Haji Mohammad Harun Champion Trophy 2022. क्लास 1 का जो आप बैनर देख रहे हैं उसके प्रोपराइटर हैं जनाब शकील अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी इस ताउन के लिए। So back to cricket now, Altaf Ali sir in dugout, and you are watching the first semi-final of late Haji Mohammad Harun Champion Trophy 2022. Mazhar Khan joining me in commentary. Welcome Mazhar. थैंक यू भाभी सर। तो पहला सेमीफाइनल जिसकी अब शुरुआत होने जा रही है लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी में, जहां पर पॉइनियर स्पोर्ट्स और आरडी 440 के बीच में ये मुकाबला। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से शाहिद खान और रसम, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गैसुद्दीन शेख। Yes, interesting. Now Gasuddin Sheikh opened the bowling attack, facing him Rasam. Rasam hit a golden 6 in this season with captain Majestic Shahid Khan. First mandatory power play, short term and backward point cover, extra cover in ring. Bilal Sheikh at mid-on, 2 men outside the ring, Sham Chaudhary and Vijendra. Gasuddin Sheikh, right arm over the wicket. Bostur Rasam, beauty, sharp incoming. Rasam tried to short and pull, wasn't a short delivery. Lovely start from Gasuddin Sheikh. जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर गैसुद्दीन शेख की, जहां पर बल्लेबाज रसम ने इस गेंद को पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद वहां पर सीधा विकेट कीपर दीपेश माली के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की और सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत यहां की है गैसुद्दीन शेख ने। Gasuddin, but this time try to slice, wide signal. Pioneer of the mark with single. Batsman looking for a slice away from the off stump. One without loss. Losing a toss, batting first here in the first semi-final in late Haji Mohammad Harun Champion Trophy 2022. Gasuddin, ball this time try to drive, thick outside edge. Rose to Gali. Zain is there, and with the stroke batsman through for 1. So Rasam off the mark with single and Pioneer 2 without loss. जी बिल्कुल, यहाँ पर 1 रनों से अपना खाता खोला है। वहाँ पर रसम ने स्लाइस करने की कोशिश की थी वहाँ पर उस गेंद को, जहाँ पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा और जैन खान वहाँ मौजूद थे। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 2 रनों पर। Yes, slow start here by Pioneer. The Peshmali adjustment in the field. Here goes Gasuddin Sheikh. This is the good battle. Facing him, Majestic Shahid Khan. Right arm, round his stumps. Balls to Shahid, try to tucking on the onside. Loud shot for LBW, like by signal from umpire. And I think the impact is outside the leg stump. Nice decision. This is the good decision from Shanu Qureshi. जी बिल्कुल भाभी सर, वहाँ पर बहुत बढ़िया एम्पायरिंग इस बार देखने को मिली। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी, जहाँ पर फ्लिक करने की कोशिश की थी वहाँ पर शाहिद खान ने। लेग बाय के रूप में 1 रन आया इस गेंद के ऊपर। Gasuddin Sheikh
This time balloon in the air could be caught. Akshay Kasar under it. And first wicket has fallen now. Rasam on his way. तो पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ पॉइनियर स्पोर्ट्स का रसम के रूप में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर रसम। हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे। तो पहला विकेट गिरता हुआ पॉइनियर स्पोर्ट्स का रसम के रूप में। Yes, first wicket has fallen now. Man out. Rasam. Black with biscuit. Dashing look from one-man show. Amiduzama, focus man of this cup. His score is 3 for the loss of 1 wicket. This time put away, beautifully played. U6 from batsman Shahid Khan. बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त आता हुआ शाहिद खान के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश किया और गेंद जाती हुई डीपी स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। गजब का शॉट आता वहां पर शाहिद खान के बल्ले से। Delightful left sweep played by Shahid Khan through his legs, put away very nicely over square leg for 6. So Shahid moves up to 7 and his score is 9 for the loss of 1 wicket. You are watching late Haji Muhammad Harun Champion Trophy 2022. More than 1200 viewers joining us on YouTube. Welcome all of you from Amiduzama and brothers and organizing committee. Now change in field now. Shahid Khan facing Gasuddin Sheikh. Right arm round his stumps. This time control pull shot, not getting too much elevation. There is a sloppy work but well covered from Akshay. Batsman gets one. Not a very good stroke, not getting too much elevation behind his stroke because ball is coming little bit late on the bat. तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर की समाप्ति पर पॉइनियर स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 10। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे रसम, लेकिन अभी भी वहाँ पर शाहिद खान जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका साथ देने के लिए अब आए हैं जुल्फिकार मोमिन। आइए दोस्तों, एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे बीच में पॉइनियर के एक्स कैप्टन मोहतरम अशफाक पनवेलकर साहब हैं। उनकी हम इज़्ज़त अफजाई पजीराई और उन्हें खुश आमदीद कहने जा रहे हैं। और मैं हमीदुज़्ज़मा इस स्पर्धा के फोकस मैन से इल्तिमास करता हूं कि अशफाक पनवेलकर साहब की इज़्ज़त अफजाई पजीराई और उन्हें खुश आमदीद कहे। हमीदुज़्ज़मा साहब के हाथों से हम उनकी इज़्ज़त अफजाई करने जा रहे हैं। उन्हें पुरखुलू शॉल, साथ में यादगार ट्रॉफी और गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता। बहुत शुक्रिया। गेंदबाजी में हमारे बीच में मोहतरम 1 मिनट के लिए मैच रोकना है। जावेद आज़मी साहब हैं। आइए हम जावेद आज़मी साहब की इज़्ज़त अफजाई करने जा रहे हैं। जावेद आज़मी साहब की इज़्ज़त अफजाई हम करते हुए हमीदुज़्ज़मा के दस्ते मुबारक से उन्हें पुरखुलूस शॉल और गुलाए मोहब्बत और मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। लौट चलते हैं मैच की तरफ। 1 ओवर 10 रन। गेंदबाजी के लिए जैन खान। जैन खान ने इस सीज़न में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, खासतौर से वडगर के कप में। लेट विनोद दादा पाटिल। राइट आर्म राउंड स्टंप,
शाहिद को छोटी गेंद थी लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए वहां पर शाहिद। मुकाबला चलता हुआ RD 440 विनोद पाटिल, जोगिंदर भाई भारकिया पाटिल और बंटी शील के टीम के बीच में। क्या बात है, डैशिंग डायनामिक विनोद पाटिल साहब रत्नागिरी में यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका स्वागत। ड्राइव किया, सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जैन। नंबर 1 टीम के नंबर 1 ओनर विनोद पाटिल साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। यूट्यूब पे रत्नागिरी में मैच देख रहे हैं। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद, नजरें हटी थी जब शॉट खेलना चाह रहे थे। लेग बाय, जैन खान ने शाहिद खान को इस ओवर में बांधे रखा है। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो यहाँ पर जैन खान ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 1 रन खर्च किया, वो भी लेग बाय के रूप में ये 1 रन आया है। स्कोर अब आगे खिसकता हुआ, इस 1 रन की मदद से 11 रन। पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, माना पॉइनियर ने कप नहीं जीता है, लेकिन पॉइनियर 2 टीम के रनर्स है और छठा सेमीफाइनल खेल रही है। इन्हें कुल मिलाकर 12 टूर्नामेंट में आपने 8 में परफॉर्म किया है, लेकिन ट्रॉफी जीतने की जो कोशिश है अब तक कामयाब नहीं हुई। जैन खान गोरसई एंड से मुड़ते हुए, इस मरतबा ऑन दी राइज खेला है मिड ऑफ पे, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, रन के लिए निकल गए बैट्समैन। अक्षय कासार गजब की फील्डिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग रही थी वहां पर अक्षय कासार की। तो 1 रन आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 12 रनों पर। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है जैन खान द्वारा, जहां पर अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। एक बार फिर से सामना करेंगे वहां शाहिद खान। खेल की शुरुआत होती हुई जैन खान, राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए भटके वहां पर और वाइड घोषित किया अंपायर विक्रम ने। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट। 4 गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहां जैन ने, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी, जहां पर एम्पायर विक्रम नाइक सर का वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में अब बढ़ोतरी होती हुई पॉइनियर स्पोर्ट्स के खाते में। राइट आर्म राउंड विस्टम, क्या बॉलिंग हो रही है, क्या बॉलिंग हो रही है। वाइड यॉर्कर शाहिद खान को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर गजब का ओवर घटता हुआ जैन खान का वाइड यॉर्कर किया था, उसको स्लाइस करने की कोशिश की थी वहां पर शाहिद खान ने। तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त दूसरे ओवर में जैन खान द्वारा। जैन खान शाहिद खान के लिए एक सिक्सर जरूर लगा चुके हैं। इस मरतबा सीधा खेल दिया है साइड स्क्रीन पर, गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। वहां पे जो हमीदुज्जमा का बैनर लगा है, गेंद अगर डायरेक्ट उसको हिट करती है तो 1000 रुपए का इनाम है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस बार आया शाहिद खान के बल्ले से। हाफ वाली पर इस गेंद को लेकर खेला सीधे बल्ले से और गेंद जाती हुई 1 बॉस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए हैं 17 रन। देखिए, मजहर खान 2 ओवर में 17 बने और पॉइनियर के कैप्टन जरूर चाहेंगे कि 70 और 80 के बीच पहुंचा जाए। हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप है। माजिद बोबड़े एक कप के मैन ऑफ द सीरीज रहे, एक के फाइक भी रहे। देखना है, क्योंकि जिस तरह बिलाल बल्लेबाजी कर रहे, 15 अर्धशतक में 3 अर्धशतक बिलाल ने लगाए। जी बिल्कुल भावे सर, अब यहाँ से जो 4 ओवर बचे उसमें पॉइनियर स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे, और वही यहाँ पर कर रहे इस वक्त शाहिद खान। इस वक्त एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाकर 11 रनों पर नाबाद है। जबकि गेंदबाजी में अब किरण पाटिल को बुलाया गया तीसरे ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट गंवाने के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स। देखिए, सुनहरा मौका है। अल्ताफ बाली सर का जो बैनर है मैदान में, BC4 के चेयरपर्सन, उस पर अगर गेंद डायरेक्ट लगती है तो रविश मोमिन की तरफ से 5000 रुपए का इनाम है।
लग सकती है। ये बैनर दिखाया जा रहा है, देखिए, मिस्टर अल्ताफ बाली शेख, इस पर गेंद जाके टकराती है तो 5,000 का इनाम। रवीश मोमिन कहीं ना कहीं भिवंडी क्रिकेट के पिक्चर से कभी भी नहीं हट सकते। मैदान में रहते तो अलग, डगआउट में रहते हैं तो उससे अलग, बल्लेबाजी करते हैं तो सबसे अलग। ये अल्ताफ बाली सर को दिखाया जा रहा है डगआउट में बैठे हुए, आए दिन बाहर के। देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि हर टीम खेले, हर खिलाड़ी खेले, खासतौर से BC4 की टीमों को। और मैं जब धनेश कप कर रहा था तो पालघर, ठाना, रायगढ़ की कई टीमें मुझसे नंबर लेके गई। तो भिवंडी की जो टीमें BC4 की, आप जल्दी कीजिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। खेल की शुरुआत अगले दौर के लिए मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। पहली गेंद वहां पर किरण की, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला वहां पर जुल्फिकार मोमिन ने। अक्षय कासर वहां मौजूद है जहां पर एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो तीसरे ओवर की यहां शुरुआत होती हुई, जहां पर एक रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ पॉइंटर स्पोर्ट्स का 18 रन। बिल्कुल, बाहर से भी कई मैसेज थे कि किरण पाटिल अपने विश्वजीत ठाकुर को देखा गेंदबाजी करते हुए, लेकिन किरण पाटिल ने भी धनेश कप में बहुत रफ्तार से गेंदबाजी की। शाहिद खान इस बार सामना करेंगे वहां पर किरण पाटिल का। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है शाहिद खान ने। इस बार नो बॉल का इशारा आया वहां से, हालांकि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ था। वहां ओवर स्टेप वहां पर हो गए इस बार गेंदबाज किरण पाटिल। देखिए, तेज गेंदबाजों के साथ ये लगा रहता है, ज्यादा तेज करने की कोशिश में ओवर स्टेपिंग कर बैठे फ्री हिट। शाहिद खान के लिए ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर एक अच्छा मौका है शाहिद खान के पास एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने का। फ्री हिट गेंद, किरण पाटिल सामना करते हुए वहां पर शाहिद खान। इस बार देखना है कि लगाया तो है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर गेंद चले गई है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। फ्री हिट गेंद थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज शाहिद खान। खेलना चाहते थे गेंद को लगभग लगभग मिड विकेट की तरफ, ऊपर लगी गेंद और खड़ी रह गई। हालांकि कैच बहुत अच्छा था, नुकसान नहीं हुआ। किरण पाटिल फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज, कॉटरेल ऑफ भिवंडी। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। तो अब अच्छी गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है किरण द्वारा। जब पिछली गेंद नो रही थी उसके बाद फ्री हिट पे भी उतने बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए थे बल्लेबाज, और इस बार फिर से अच्छी गेंद वहां किरण की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है पॉइंटर स्पोर्ट्स का 20 रन। इस सीजन में 2 हैट्रिक कर चुके किरण पाटिल, बेस्ट बॉलिंग फिगर भी उनके नाम है। 2 ओवर 9 रन और 6 विकेट।
गलती नहीं की वहां पर फाइनल लेग शॉर्ट फाइनल लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी जैन खान ने। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ पॉइनियर स्पोर्ट्स का। बड़ा झटका लगता हुआ ये देखिए कॉर्नर ऑफ द क्रीज, पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पैडल स्वीप और आउट हो गए जुल्फिकार। नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी, मैन ऑफ द सीरीज इस सीजन में एक बार रहे वो। लेकिन बड़ी बात है कि बीपीएल सीजन 1 जब यहाँ खेला गया था तो मैन ऑफ द सीरीज रहते। ये ग्राउंड फाइक के लिए बहुत अच्छा है जहाँ तक उनके बल्लेबाजी का ताल्लुक है। 3 ओवर की समाप्ति पे टोटल उतना तो अच्छा नहीं जिस तरह कप्तान ने चाहा होगा। 24 रन में 2 विकेट। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर अगर हम स्कोर देखें तो सिर्फ 24 रन बने और 2 विकेट गिरे। अब तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई, तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जहाँ पर पहले ओवर में गैसुद्दीन ने 10 रन खर्च किए, उसके बाद जैन खान ने भी अच्छी गेंदबाजी की 7 रन, और उसके बाद किरण ने भी 7 रन खर्च किए। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। शाहिद खान जो अच्छी बल्लेबाजी करे, पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, और अब उनका साथ देने के लिए इस वक्त फाइक अंसारी। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फेम टीम, धनेश कुकसे की कैप्टन, और भरत एन अनिल देवलीकर फेम टीम, सुरेश पाई की कैप्टन। दूसरे सेमीफाइनल का वो टॉस रहेगा। जी बिल्कुल, दूसरा सेमीफाइनल का टॉस के लिए आना, जबकि ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी में। गेंदबाजी में अब हिमांशु पाटिल को बुलाया गया है। अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और अब तक 5 विकेटें हासिल की है उन्होंने। अब देखना है सेमीफाइनल मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। हमारे बीच में फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। यस, उनकी एंट्री खास करने के लिए हमीदुज्जमा उनके साथ एंट्रेंस गेट पे जा चुके हैं। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के सपूत इस वक्त खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल। पहली गेंद वहां पर हिमांशु की, और इस गेंद को भेज दिया है शाहिद खान ने बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर से स्वागत किया वहां पर शाहिद ने गेंदबाज हिमांशु का। और ये आप देख सकते हैं अपने टीवी मॉनिटर पे, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। क्या शॉट खेला है शाहिद खान ने, जैसे ही लेग स्टंप पे गेंद मिली फेंक दिया उस गेंद को हवा के साथ साथ घटा के संग संग बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ शाहिद खान के बल्ले से। सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 30 रनों पर। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया वहां हिमांशु के अगेंस्ट। मौजम पटेल भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। यहां से गेयर बदलना होगा और गेयर बदल रही है पॉइनियर। इस बार देखना है वहां पर कवर की दिशा में इस गेंद को खेला और गेंद जाएंगी ये भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत वहां पर इस वक्त स्ट्रोक खेला है वहां शाहिद खान ने। Yes, now Shahid Khan changed the gear. Last one was short, wide and punish. Cracking stroke off his back foot, cracks it through the covers in vacant area over the infield for 4. तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त शाहिद द्वारा। हिमांशु पाटिल पहली 2 गेंदें जहाँ पर 10 रन खर्च किए और पॉइंटर का स्कोर वहाँ पहुँचा दिया शाहिद खान ने 34 रनों पर। देखना अब गैसुद्दीन शेख कुछ कान मंत्र देने के लिए गए वहां पर हिमांशु पाटिल को। शाहिद खान इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 22 रनों पर इस वक्त खेल रहे हैं, जिसमें 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री अब तक लगाई। एक बार फिर से वहां पर, लेकिन इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को वहां शाहिद खान। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदें जहां पर 10 रन बढ़ रहे थे, इस बार कोई रन नहीं। अच्छी वापसी यहां पर रही है हिमांशु पाटिल की। दूर से खेलने की कोशिश, कट शॉट करना चाहते थे।
उसी बीच वहां पर देखना है, इस बार छोड़ दिया था उस गेंद को शाहिद खान ने। अच्छा फैसला, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन और आएगा पॉइंटर स्पोर्ट्स के खाते में। स्कोर 1 रन की मदद से अब 35 रन। पिछली गेंद वाइट थी, बल्ला चलाया। कहते हैं कि दूध का जला छाक फूक कर भी पीता है, और इस गेंद को बराबर छोड़ दिया शाहिद खान ने। एक बार फिर से वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे शाहिद खान। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 36 रन। ओवर नंबर 4 का खेल हम देख रहे हैं, जबकि 2 विकेटें अब तक गिर चुकी है पॉइंटर स्पोर्ट्स की। रसम और जुल्फिकार मोमिन ये 2 बल्लेबाज आउट होकर गए, जबकि शाहिद खान इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर 23 पर खेल रहे हैं, और फाइक अंसारी ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला धनेश बनाम सुरेश पाए। उसी बीच वहां पर शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां फाइक अंसारी ने। अच्छी गेंद रही थी इस बार वहां हिमांशु पाटिल की। ये देखिए किस तरह से वहां पर बीट हो गए बल्लेबाज। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी और बाल बाल बच गए वहां फाइक अंसारी। Wrong one from Himanshu Patil, and ball is kept low. जी बिल्कुल भाभी सर, विकेटों के बहुत करीब से गेंद निकल गई थी। इस बार देखना इस गेंद को खेला है हवा में और देखते रह गए वहां पर खिलाड़ी, और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त आता हुआ फाइक अंसारी के बल्ले से। स्लॉग स्वीप किया। ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख। हिटमैन का पहला हिट बहुत दूर कहीं, हाई एंड सम 6 रन। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति 42 रन 2 विकेट। अब देखिए 2 अच्छे बैट्समैन क्रीज पे 14 गेंदों में 23 रन बना के खेल रहे शाहिद खान। 2 गेंदों में 6 रन बनाए फाइक अंसारी ने। डेथ ओवर में पॉइनियर चाहेंगी कि 30 के ऊपर रन आए। जी बिल्कुल भाभी सर, अब पॉइंटर स्पोर्ट्स यही चाहेंगी कि 30 से 35 रन और बटोरे जाए। और पिछले ओवर में महंगे साबित हुए गेंदबाज हिमांशु पाटिल, जहां पर 18 रन उन्होंने खर्च किए है। धनेश कुकसे के कैप्टन, आपको आखिरी कॉल है, महेंद्र मागे प्लीज। और सुरेश पाए के कैप्टन सूरज पाटिल। अकील हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। नाउ Kiran Patil continue. Pioneer 42 for the loss of 2 wickets. Lot of depend on Shahid Khan, who facing Cottrell of Bhiwandi, fast and furious bowler. You are watching. Let Mohammad Haroon Champion Trophy. Kiran Patil, left arm over the wicket, facing him Shahid Khan. Balls to Shahid, nicely played, working on the onside, in the gap, long chase, slightly fumbled here, and Shahid Khan gets 2. There is a overthrow, and finally batsman is out. There is a hesitation between both the batsmen, and Shahid Khan is out for 25. बिल्कुल यहाँ पर बड़ा विकेट गिरता हुआ शाहिद खान के रूप में पॉइनियर स्पोर्ट्स का मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर देखने को मिली। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर आउट हुए शाहिद खान। हालांकि 2 रन पूरे किए थे और तीसरे रन के लिए निकल पड़े थे वहाँ शाहिद खान। नए बल्लेबाज अब माजिद बोबड़े इस वक्त आते हुए। Yes, Peacock of Bhiwandi, but this is the poor understanding between Shahid Khan and Faik Ansari. Finally, Shahid Khan played good knock so far. In 15 balls, he made 25 runs and captain back to the dugout. The departure of Shahid Khan, Newman in Majid Bobre. In first BPL, Majid Bobre played a fantastic knock on this ground against the Hardik Pandya of
tennis cricket, the fast bowler Vishwajit Thakur. जी बिल्कुल भावे सर, बीपीएल सीजन 1 में माजिद और अक्षय कासर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की Against थी। Vijay Paule, sorry, against Vijay Paule. Vijay Paule considered 50 runs in 2 overs. The Sangli Express. And here goes Kiran Patil. Left arm over the stumps. Oh, beauty, beauty. Equally played. Swinging Yorker, but equally played. Tucked away on the onside. 1 to Isco now. Pioneer 45 for the loss of 2 wickets. Kiran Patil, fast and furious bowler in Bhiwandi tennis cricket. One of the very successful bowler, 2 times best bowler of the tournament. First in JB Cup winner, then second in late Vinod Dada Patil Vadgar. Here goes Kiran Patil. Left arm round his stumps, facing him batsman Faik Ansari. Balls to Faik, lovely looking on drive. Kasar is there, one of the great fielder. Meanwhile, batsman gets one. जी बिल्कुल। Now, clean and neat telecast. His score is 46 for the loss of 2 wickets. Because Prathamesh Patil joining with us. Men create history. And what's the comments from Kunal Date about the telecast in Dhanesh Cup? Beauty, wrong one. Majid tried to play weave from his body. Ball is kept low. Lovely bowling. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर इस बार किरण पाटिल की, और घूमकर उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज माजिद बोबड़े ने। Score is 46 for the loss of 2 wickets. With me, powerful commentator Sunil Pawar and Mazhar Khan. This time played superbly in the gap. One bounce, cross the backward square leg for 4. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ माजिद बोबड़े के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेला है। खाली क्षेत्र में गेंद चलेगी, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से पॉइनियर स्पोर्ट्स का अब तक का जो स्कोर हुआ है 50 रन। ये देखिए वहां पर किस तरह से ये बाउंड्री लगाई है वहां पर माजिद बोबड़े ने। ये दिखाया जा रहा है गेंद की लाइन में आकर उस गेंद को खेला है, और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ग्रेट शॉट इंडीड। हमारे बीच इस वक्त जुड़ते हुए मोहतरम जावेद मोमीन, अनवर खान, तारिक अहमदुल्ला अंसारी और नईम भाई शिवसेना के दिग्गज लीडर हैं। आप सभी का पुरजोश खैर मकदम है। किरण पाटिल टू माजिद बोबड़े। This time put away. Could be 6. What a great stroke in style of De Kock for a glorious shot. 6 runs. जी बिल्कुल बाबे सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आया इस वक्त माजिद बोबड़े के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश कर दिया है 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 56 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर 56 रन। देखिए पायनियर के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। बिलाल शेख बहुत अच्छे टच में। श्याम चौधरी पायनियर के कैप्टन चाहेंगे कि 70 के ऊपर जाया जाए। हालांकि संभावना है क्योंकि दोनों अच्छे बैट्समैन पिच पर हैं। आइए दोस्तों, हमारे बीच फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी हैं। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के नूरे नज़र, उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब के दस्ते मुबारक से। उन्हें ये प्रेम भरी शॉल ओढ़ाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं। ये पुष्पगुच्छ फूलों का गुलदस्ता, इस उम्मीद के साथ आपकी भी ज़िंदगी में फूल खिले गुलशन गुलशन, और ये यादगार मोमेंट हो। बहुत धन्यवाद। बैक टू क्रिकेट।
5 ओवर की समाप्ति, रन बने पायनियर के 56, विकेट गिरी है 2। थोड़ी देर में हमारे बीच रफीउज जमा अंसारी उर्फ लाला, एक्स नगर सेवक और मौजूदा विद्यमान नगर सेवक, ये देखिए जुड़ते हुए इस वक्त रफीउद्दीन जमा अंसारी उर्फ लाला, माजी नगर सेवक, और मुजाहिद अंसारी भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के मौजूदा नगर सेवक, आप दोनों का इस्तेकबाल है। वेलकम हमीद उस जमा एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। खेल की शुरुआत डेथ ओवर में गैसुद्दीन शेख, पहली गेंद अच्छा ड्राइव आगे रखा था, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी 1 रन। पायनियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 पे पहुंचा है। तो लास्ट ओवर की अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी और पहली गेंद के ऊपर 1 रन आया। इस वक्त इरफान शेख ने ऑल द बेस्ट कहा है दोनों टीमों को, जो बहरन में और पायनियर स्पोर्ट्स के लिए भी खेल चुके हैं। इरफान शेख और बीपीएल में इसी ग्राउंड पर प्रमोद के साथ मिलकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने। सिटी क्रिकेट चल रहा है तो सिटी क्रिकेट में हम आपके ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत का ये सबसे बड़ा फॉर्मेट है। स्कोर इस वक्त 57 रन, 2 विकेट। पांच गेंदें बची है कुछ करने के लिए पायनियर के पास। स्ट्राइक माजिद बोबड़े 4 गेंदों में 11, 1 सिक्सर और 1 चौका लगा चुके हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं पायनियर और आरडी 4440 के बीच में। आप देख रहे हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी 2022। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए गैसुद्दीन शेख, भिवंडी के एबी, सामना करेंगे भिवंडी के डिकॉक माजिद बोबड़े। 1 2 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी सर्कल में, बिल्कुल इंटरनेशनल रूल, और ये बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। विकेटों के बाहर चली गई वाइट। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही थी वहाँ गैसुद्दीन शेख की। वाइट का इशारा है वहाँ से और 1 रन की मदद से पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर अब 58 रनों पर। इस मरतबा हुक कर दिया है, 6 रन। माजिद बोबड़े का शॉट है, एक बार बल्ले के बीचों बीच आया तो उस पे मोड़ रहती है, 6 रन। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ माजिद बोबड़े के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया माजिद बोबड़े ने, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को हुक कर दिया था और 6 रन बटोरे। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 64 रन। 64 रन। पायनियर चाहेंगी कि बची हुई कितनी गेंदे है साहिबा? 4 गेंदे, इसमें 2 बड़े शॉट आए, क्योंकि जिस तरह बिलाल शेख के बल्ले को रनों का खून लगा हुआ है, उसको देखते हुए पायनियर के कैप्टन चाहेंगे कि एक अच्छा टोटल रखा जाए। फिर से खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी देखते रह गए, 4 रन। शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, वंडरफुल। माजिद बोबड़े तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 सिक्सर और 2 चौके लगा चुके हैं। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है माजिद द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बाउंड्री लगाई वहाँ माजिद ने, शॉर्ट आर्म पुल लगाया था और 2 खिलाड़ियों के गैप में से गेंद चले गई, कोई मौका नहीं वहाँ पर 4 रनों के लिए। 68 रन
आप पायनियर एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें और माजिद कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 8 गेंदों पर 21, 6 गेंदों पर 21। गैसुद्दीन, माजिद को बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, डंडा गया सैर करने। जी बिल्कुल वापस सर, ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर माजिद बोबड़े। परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी जहां पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। तो अच्छी बल्लेबाजी करके इस वक्त वापस लौटते हुए वहां पर माजिद बोबड़े, लेकिन बहुत बढ़िया वापसी देखने को मिली यहां पर गैसुद्दीन शेख द्वारा। नए बैट्समैन पावर हिटर और भिवंडी अकबर शेख आए। कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अब उनके लिए सिर्फ 2 गेंदें रह गई है और पायनियर का स्कोर है इस वक्त 68 रन 4 विकेट। कुणाल दाते ने प्रिंस मूवीज के टेलीकास्ट के बाबत में बहुत ही ज़बरदस्त अपना ओपिनियन दिया था, और मैं समझता हूं कि दूरदर्शन, स्टार स्पोर्ट्स, ESPN को प्रथमेश मात्रे को अरेंज करना चाहिए, प्रथमेश पाटिल को, हमारे ऑनलाइन में। 2 गेंदें बची है। 8 टेलीकास्ट बहुत ही साफ सुथरा तमाम स्कोर के साथ आता हुआ। गैसुद्दीन शेख, बढ़िया गेंद। नए बैट्समैन के लिए अच्छी सोच, बैट्समैन के फुटवर्क को चेक किया, मजबूर किया अकबर को झुक के खेलने में। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है गैसुद्दीन शेख द्वारा, जब पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था माजिद बोबड़े का, और इस बार अच्छी गेंद। यहाँ पर 69 रन हुए, और कल शाम का जो आखिरी मुकाबला था RD के सामने जॉय कुमार ने 71 का टारगेट रखा था, लेकिन यहाँ पर फाइक है, गेंद को भेज दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। ये सिक्सर हो सकता है, मैच के लिए निर्णायक रहे। कुल मिलाकर रन बने पायनियर के 75 रन, 76 की चुनौती। ये मुकाबले में पायनियर के टारगेट पे रहेंगे श्याम चौधरी और बिलाल शेख, और श्याम और बिलाल के राडार में रहेंगे पायनियर के गेंदबाज। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे। आइए दोस्तों, दूसरे सेमीफाइनल के लिए फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र, वेलकम महेंद्र माके और सुरेश पाई के आकाश पाटिल। मैं इस टॉस के लिए आवाज़ देना चाहूँगा फेस ऑफ भिवंडी, उभरते हुए लीडर मयूर पाटिल साहब को। आपके हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच में इस सीज़न में 2 मैच हुए, दोनों में जीत धनेश की हुई। ये स्टैटिक्स मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि दर्शकों को पता चले कि क्या उलटफेर हो रहा है। यस, ये सिक्का मैं उनको देता हूं। कौन कॉल करेगा? हेड हेड कहना है, और यस, टॉस को जीत इस वक्त धनेश ने। बहुत धन्यवाद मयूर जी, आपसे निवेदन है मंच की शोभा बढ़ाना है। पहले तो ये सवाल करूंगा कि महेंद्र, टीम में कोई चेंजेस है? ऐसा कुछ नहीं, हेमंत नहीं था, कॉल किया था हम लोग, थोड़ा बाहर था, अभी आ रहा है शायद। इसका मतलब हेमंत अराठा है जो इस सीजन में बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करना चाहूँगा। ये बताइए कि एज अ कैप्टन पिछले मैच में कप्तानी बहुत लाजवाब की महेंद्र मागे ने। महेंद्र, ये बताइए, सामने की टीम बहुत घातक है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। आउट तो सबको करना चाहेंगे, लेकिन टारगेट पे कौन रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बॉलर को एक टारगेट देके सेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से डॉट बॉल निकालो, विकेट कोई भी खेले वो उससे मतलब नहीं है। हम 6 बॉल से हम 3 बॉल कीपर के हाथ में दे दो, एक सामने बॉलर का और एक छक्का खाए तो चीज़ नहीं, 10-11 का एवरेज से भी चलेंगे तो भी कोई नो प्रॉब्लम।
डॉट बॉल के बाद प्रेशर बढ़ जाता है, विकेट फेंका जाता है, लेकिन ये बताइए कि कोई माइंड सेट होगा कम से कम कहाँ तक रोकेंगे? मैंने पहले भी कहा था हम लोग को ऐसे माइंड सेट नहीं करते, हम लोग को बॉलर को बोल के रखते हैं कि जितना कम में खींच सकते हो उतना कम में खींचो। विनीत माली से क्या अपेक्षा है? युवा गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हम लोग को विनय माली से भी और जितने भी यंगस्टर हम लोग में खेल रहे हैं, हम लोग उनको ऑलवेजली हम लोग इस टूर्नामेंट सबको चांस दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के आगे अपने को मालूम बाली ट्रॉफी है आगे और आगे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट है, क्योंकि हम लोग उनको ट्रेनिंग करके रेडी करना चाहते हैं कि अगले टूर्नामेंट को आपको कैसे खेलना है, कैसे तरफ से खेलना है, उस तरफ से हम लोग सबको चांस दे रहे जा रहे हैं। देखिए, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। विवेक शेलार का जो फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, एज अ कैप्टन क्या सलाह देंगे आप? मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि अभी कैसा क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है डे नाइट, क्योंकि बाहर भी खेलना पड़ रहा है, अभी भिवंडी से बाहर भी जा रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है, वो उसको वही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे, अपने को रिकवरी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो उम्मीद करें कि आप फाइनल की तरफ देख रहे हैं। कोशिश तो ज़रूर करेंगे जीतने की। ऑल द बेस्ट। ये कप्तान है जो बहुत छुप छुप के अपने कमेंट्स दे रहे हैं। आकाश, नाणेफेक जिंकली असती ते काय कर? फिल्डिंग घेतली असती. आता तुम्हाला फलंदाजी करायची, कुठले ओपनर्स आहे जे फ्लाइंग स्टार्ट देतील? ते गेम प्लॅन आहे ते आम्ही करू. संघामध्ये काही बदल? सूरज नाही मग ते. काय वाटतो, मोठा उलटफेर होईल? नाही, आम्ही आमचा गेम दाखवण्याचा प्रयत्न करू. किती धावापत जाणार? जास्तीत जास्त मारण्याचा प्रयत्न करू. कॅप्टन, लीडिंग फ्रंट काय परफॉर्मन्स राहील तुमचा? माझा नॅचरल खेळ दाखवण्याचा प्रयत्न करीन मी. एक अटीतटीचा सामना होईल. हो, नक्कीच. All the best. The news from the toss box is Dhanesh won the toss, elected ball first. Back to the commentary box. Sunil Pawar is there. अनेक अनेक धन्यवाद भावे सर. तर आपण पाहताय तर लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 हा शेवटचा दिवस आहे आणि या शेवटच्या दिवसातला दुसरं सत्र पाहतोय आपण आणि या सेमीफायनलचा एक मोठा सामना. पॉइनियर स्पोर्ट आइए सुनील, हमारे बीच में काफ़ी मेहमान हैं. खेल को रोकना है जब तक हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मैच बड़ा है. हमीदुल जमा साहब के हाथों से सबसे पहले हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. पजीर आई खुश आमदीद रफ़ीउस जमा अंसारी उर्फ लाला भाई, माजी नगर सेवक भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के. उन्हें पुरखुलूस शॉल, ये फूलों का गुलदस्ता और ये यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है. हमारे बीच में कार्य सम्राट नगर सेवक मोहतरम मुजाहिद अंसारी साहब हैं, पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका मुजाहिद अंसारी साहब नगर सेवक की इज्जत अफजाई, पुरखुलूस शॉल, गुलाए मोहब्बत और ये यादगार मोमेंटो. जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था. अनवर खान साहब हैं हमारे बीच में. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. अनवर खान साहब की इज्जत अफजाई पजीर आई होती भी उन्हें खुशामदीद कहा जा रहा है. हमारे बीच में मोहतरम जावेद मोमिन साहब हैं. आइए हम जावेद मोमिन साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. जावेद मोमिन साहब, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है. उन्हें पुरखुलूस शॉल, ये फूलों का गुलदस्ता और यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है. हमारे बीच में मोहतरम तारिक अंसारी साहब है. दो इज्जत अफजाई बचे हैं सिर्फ अंपायर. तारिक मोमिन साहब की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. उन्हें पुरखुलूस शॉल, गुलदस्ता और यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है. हमारे बीच में आखिर में उद्धव ठाकरे सेना के दिग्गज कार्यकर्ता नईम भाई हैं, शिवसेना के, शिवसेना ठाना जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. उन्हें पुरखुलूस शॉल और ये यादगार
कुलाए मोहब्बत और यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और देखिए सुनील पवार की जितनी मराठी कमेंट्री अच्छी उतनी हिंदी है। शुरुआती हिंदी कमेंट्री के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार। अल्ताफ बाली सर, आपसे इल्तिमास है, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। शुक्रिया भावे सर। मेरे तो ख्याल से मुजीब शेख साहब हमारे बीच में, आपका इस्तकबाल है। मैच की शुरुआत होती हुई दो बड़ी टीमों के बीच में एक कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर जो लक्ष्य रखा गया 76 रनों का ये बड़ा टारगेट धनेश के सामने, और उसको स्वीकारने के लिए दोनों ही आरंभिक जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर मौजूद है। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज बिलाल और नॉन स्ट्राइक पर अक्षय कासार। बड़ी अच्छी जोड़ी है और टेनिस क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है किंग ऑफ भिवंडी बिलाल के रूप में। गेंदबाजी के लिए ओसामा बेहतरीन गेंदबाज। पहली गेंद काफी खूबसूरत ड्राइव, लेकिन प्लेसमेंट ठीक नहीं थी वहाँ पर कवर पर, और लाजवाब शुरुआत यहाँ पर ओसामा द्वारा। पीछे हटकर थोड़ा ड्राइव करने का प्रयास था बिलाल का। टाइमिंग बहुत अच्छी थी लेकिन प्लेसमेंट ठीक नहीं थी। इस मरतबा उड़ा दिया है गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से जा रही है और खाता खुलता हुआ आरडी का और खाता खुलता हुआ इस वक्त बिलाल का। कमाल का शॉट, थोड़ा पीछे हटे और हट के खेला इसको मिड विकेट के ऊपर से। छोटी गेंद तो और बड़ा शॉट। बिलाल शेख पारी का आगाज करते हुए 76 रनों की एक बड़ी दूरी तय करना है इस वक्त, लेकिन धमाकेदार शुरुआत करते हुए बिलाल शेख। आइए फील्ड की जमावट बिलाल के लिए। विकेट के पीछे दूर विकेट कीपर, शॉर्ट थर्डमैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कवर घेरे के अंदर, और खुद कैप्टन इस वक्त मिड ऑफ पर खड़े हैं। ऑनसाइड की बात की जाए तो इस वक्त मिड विकेट घेरे के अंदर फाइक अंसारी, स्कोर लीग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी। इस फील्ड की जमावट के साथ गेंदबाजी की कमांड जारी रखेंगे ओसामा। इस प्रकार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन आड़े बल्ले से गेंद को ड्राइव किया मिड विकेट की जानिब, और तब तक समय था टहल कदमी करते हुए अपने अपने छोर बदलने का मौका। इस एक रन के साथ 7 रन के निजी स्कोर पर बिलाल नॉन स्ट्राइक पर, और कुल मिलाकर स्कोर आरडी 440 का स्कोर इस वक्त 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अक्षय कासार एक युवा बल्लेबाज, अनगांव के एक खिलाड़ी, उच्च कोटि के बेहतरीन बल्लेबाज। वही फील्ड के साथ गेंदबाजी करेंगे ओसामा। अच्छी गेंद ड्रेप के हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और तब तक का समय था अक्षय के पास टहल कदमी करते हुए अपने अपने छोर बदलने का मौका। अक्षय कासार अपने पारी का आगाज करते हुए इस सिंगल के साथ 8 पर जा पहुंचे। कुल मिलाकर स्कोर पहले ओवर का खेल जारी। ओसामा पॉइनर की तरफ से काफी उच्च कोटि के गेंदबाज है और विकेट टेकिंग गेंदबाज कहते हैं अक्षर इनको, और उस पर खराबी उतरे अब तक। इस मरतबा हट के खेलने का प्रयास, स्विच हिट खेलने का प्रयास किया तो पर चुके वहां पर। अच्छी गेंद, आठ रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा टारगेट खड़ा किया है पौनेर की टीम ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी माजिद और साथ ही साथ कैप्टन शाहिद खान ने और पाइक अंसारी ने उसी बल्लेबाजी के बदौलत एक बड़ा टारगेट खड़ा किया। तैयार होते हुए गेंदबाज फिर से हमसे दूर जाते हुए ओसामा। इस मुद्दा फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद लेकिन बैकवर्ड स्कोर लेके ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। क्या कहेंगे मजर, जिस तरह से पहले ओवर का खेल इस वक्त हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बिलाल शेख ने, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 14 रन, जहाँ पर
बहुत बढ़िया शुरुआत मिली इस वक्त RD 440 को, जहां पर बिलाल शेख ने 2 सिक्सर लगाए हैं। मदर खान जर पहिला आपण शेवटच्या चेंडू ज्या प्रकारे शॉट खेळला होता असं वाटलं की हवेसोबत हा चेंडू बाहेर गेलाय. ज्या प्रकारे परफेक्ट टायमिंग नव्हती, त्यामध्ये शक्ती थोडीशी कमी होती, पण हवेचा वेग ज्या प्रकारे पाहतोय आपण स्केवलेकच्या बाउंड्रीकडे, त्या हवेसोबत मात्र चेंडू स्केवलेकच्या वरतून ठोकलाय षटकार. आणि षटकारी मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण 14 बिनबाद. एक चांगली दमदार सुरुवात पाहतोय RD 440 या संघाची. जी बिल्कुल, यहाँ पर एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है RD 440 को, क्योंकि जो टारगेट है वो 76 रनों का टारगेट है और एक अच्छी शुरुआत इस वक्त मिली है RD स्पोर्ट्स को, जहां पर बिलाल शेख ने पहले ओवर में 2 सिक्सर लगाए हैं। मदर खान जर पहिला आपण जर पॉइंटर संघाला सामना जिंकायचा असेल तर ब्रेक थ्रूची आवश्यकता असेल, कारण की 76 धावचं टार्गेट आहे, पण तुम्हाला विकेट प्राप्त करणं गरजेचं आहे. एकदाच जर सुरुवात मजबूत झाली तर मात्र पर्यंत आत्मविश्वास वाढलेला आहे. या क्षणी जर एखादा विकेट प्राप्त केला तर मात्र निश्चित पॉइंटर संघ पलटून वार करू शकतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब विकेटें निकालनी होंगी और गेंदबाजी के लिए राहिल शेख को बुलाया गया है। याच पाता पुलचा फटका चांगला आहे स्क्वेअर क्षेत्राकडे पाहतो, इशारा करतोय हा षटकार, कडक फटका. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ, इस बार अक्षय कासार के बल्ले से आया। डिप में वहाँ पर अकबर शेख मौजूद थे, लेकिन मस्तक पे दस्तक और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल सही कहा था आपने कि यहाँ से विकेटें निकालनी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाजों ने जो अपना खाता खोला है वो सिक्सर के साथ खोला है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 20 पर। राहिल शेख जो अब तक इस टूर्नामेंट में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, अच्छा टूर्नामेंट उनका रहा है ये, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया वहाँ बल्लेबाज ने। पहिल्या चेंडूवर षटकार, अजून एक कडक KDK, पण हवेत आहे खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू. इथं मात्र एका क्षणी असं वाटलं तर की चांगला फटका आहे, पण कुठंतरी शक्ती आणि टायमिंग फटक्यामध्ये कमी पडली आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्राकडे तोपर्यंत संधी होती. यावेळेस मात्र 2 धावा सहज पूर्ण करतोय अक्षय कासार. जी बिल्कुल, पुल करने की कोशिश की थी वहाँ पर अक्षय ने, लेकिन इस बार उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे। नो मैट्स लेन में गेंद गई और इसी बीच 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। आता मात्र धावसंख्येला वेग, धावसंख्येचा आलेख मात्र उंचावताना पाहतोय आपण. एक दमदार आणि तुफानी सुरुवात RD 440 या संघाची. याच पात्र चांगला चेंडू होता, बॅक टू द बॉलर. आपल्या फॉर्ममध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. धावसंख्या धावफलकावर स्थिर आहे, पाहतोय आपण. अजून इथं मात्र धावसंख्या 22 पाहतोय आपण. बिनबाद एक दमदार सुरुवात. 1.3चा खेळ झालाय आणि त्यामध्ये एक धमाकेदार सुरुवात पाहतोय आपण RD 440 या संघाची. याच पाता अतिशय सुरेख लेंथरचा चेंडू होता, सफल क्रॉसवर मात्र ऑन साइड कडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. बीट होतोय, बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक मदर खान. अजून मी तर म्हणेन की पहिल्या विकेटची प्रतीक्षा आहे. विकेट पडल्यानंतर मात्र पवनेर संघ पलटून वार करणार आहे आणि बिलाल किंवा अक्षय याच मधून एखाद्या फलंदाला बाद करणं गरजेचं आहे. याच पात्र ऑन रे पाहता आपण. मिड ऑनला चेंडू अतिशय वेगात, चांगला प्रयत्न केला होता तिथे मात्र, पण एका चोरटी धाव इथं मात्र पूर्ण करतोय अक्षय कासार. या एका धावनी संघात धावसंख्या 23. जी बिल्कुल, वहाँ पर जैसे गेंद बल्ले पर लगी तेज रन के लिए निकल पड़े थे वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि फाइक अंसारी वहाँ मौजूद थे मिड ऑन पे, किस्मत वाले रहे यहाँ तो मैं कहूँगा अक्षय, लेकिन 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुँचता हुआ 23 रन। पण एक चांगली सुरुवात मदर खान पाहतोय आपण. 76 धावचं टार्गेट RD 440 संघाकडे आणि बिलाल आणि अक्षय कासार यांनी एक उत्कृष्ट सुरुवात करून दिली. कारण की तुम्हाला जेव्हा मोठं टार्गेट तुमच्या डोळ्यासमोर असतोय, सलामीचे फलंदाज जेव्हा तुम्हाला एका चांगली सुरुवात करून देतात तर तुमचा मनोधैर्य खूप उंचावतोय आणि फलंदाजी जर पाहिली आपण RD स्पोर्ट्स संघाची खूप मजबूत आहे. गोलंदाज सज्ज होताना राईट अमोर विकेट. पुढचा चेंडू, याच पात्र बॅकफुट कट, अतिशय अप्रतिम देखना फटका. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, येतोय चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बिलाल शेख के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से अपने आप को रूम देकर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। आइए हमारे बीच में मोहम्मद जमान साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त होने जा रही है। इशरुज जमा साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनके दस्त मुबारक से इस वक्त इज्जत अफजाई होने जा रही है। मोहम्मद जमान साहब
ये देखिए ये शॉल पहनाते हुए इसरुल जमा अंसारी साहब और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी इस वक्त देते हुए मोहम्मद जमान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमान साहब आपका, आप यहाँ पे आपका कीमती वक्त दिया है। तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण 27. एक दमदार सुरुवात, अजून पहिल्या विकेटची प्रतीक्षा पवनेर संघाच्या गोलंदाजाला आणि मदरखान आपण उल्लेख केला होता की तुम्हाला विकेट प्राप्त करावं लागेल कारण की प्रतिस्पर्धी संघाची फलंदाजी खूप खोलवर आहे। पाहतोय आपण बिलाल आणि अक्षय कासार ही जोडी खेळपट्टीवर आहे आणि या मोठ्या धावचा पाठलाग करताना मात्र एक अतिशय चांगली सुंदर सुरुवात करून देताना आपल्या संघासाठी कंटिन्यू पाहतोय आपण हुकमे एक्का पवनेर संघाचा ओसामा विकेट टेकिंग गोलंदाज, पण या सामन्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये विकेट त्याला प्राप्त करता आलं नाही आणि समोर पाहतोय आपण एक जबरदस्त युवा फलंदाज RD 4440 संघाचा अक्षय कासार। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब विकेटें निकालनी हुई और गेंदबाजी के लिए अब उसामा को बुलाया गया। उसामा जो कि लगातार बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रह चुकी है, अब उनको यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बुलाया और विकेटों की ज़रूरत है यहाँ पर पवनेर स्पोर्ट्स को। लेकिन अगर शुरुआत हम देखें तो RD 4440 की बहुत ही बढ़िया रही, जहाँ पर बिलाल और अक्षय ने एक शानदार शुरुआत दिलाई है, फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 27। दमदार सुरुवात, श्वास पात्र दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मिड विकेटकडे चेंडू मात्र कॉर्नर क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल होते, तोपर्यंत एक धाव सहज कंप्लीट करते फलंदाज अक्षय कासार आणि संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 28 बिनबाद। 76 धावाचं टार्गेट पाहतोय आपण RD 4440 या संघाकडे उभं केलं होतं पवनेर संघाने आणि त्याचा उत्तर देताना मात्र एक दमदार सुरुवात पाहतोय आपण। जी बिल्कुल, यहाँ पर टोटल हम देखें तो पवनेर स्पोर्ट्स ने अच्छा दिया है RD को। बल्लेबाजी की हम बात करें तो शाहिद खान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 25 रन बनाए, उसके बाद 14 रनों की पारी खेली है फाइक अंसारी ने और फिनिशिंग टच दिया है माजिद बोबड़े ने। सभी ने अच्छी बल्लेबाजी की, कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अब तक विकेट नहीं निकाल पाए वहाँ पर पवनेर के गेंदबाज। मजर खान, इथं मात्र जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर विकेट घेणं गरजेचं आहे, कारण की ज्या प्रकारे पवनेर संघाची उच्च कोटीची फलंदाजी पाहिली आपण, पण गोलंदाजीमध्ये कुठेतरी पाहतोय की एवढी खास पाहायला मिळत नाहीये। सामना जर जिंकायचा असेल तर सातत्याने उल्लेख करतो की विकेट तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे। तब्बल पाहतोय आपण 76 धावाचं टार्गेट आहे, तो टार्गेट स्वीकारताना मात्र RD 4440 या संघाची अतिशय चांगली दमदार सुरुवात पाहतोय आपण। जय बजरंग क्रीडानगरी गोडसेची ऐतिहासिक मैदानावर आपण ही टुर्नामेंट पाहतोय। सिटी क्रिकेटचा घमासान, आज शेवटचा दिवस आहे आणि पहिला सेमीफायनलचा सामना RD 4440 विपक्ष पाहतोय आपण पवनेर अल्ताफ बाली साहेबांचा संघ आहे आणि प्रतिस्पर्धी जर पाहिला आपण तर विनोददादा पाटील यांचा संघ है। तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं खाड़ी पार के बहुत ही मशहूर बिल्डर मफू बिल्डर और साथ में उनके साबिर शेख साहब। ये देखिए मफू बिल्डर खाड़ी पार के बहुत ही मशहूर बिल्डर है और साबिर शेख साहब। वेलकम मफू भाई और साबिर भाई, आपका इस्तकबाल है लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी में। तर सामन्याला सुरुवात करायची आहे। ओसामा याला मात्र कंटिन्यू ठेवण्यात आलेले आहे। अपेक्षा आहे की ओसामा यांच्याजवळ 1 किंवा 2 विकेट या षटकामध्ये प्राप्त करून देईल काय आणि पवनेर संघाला वापसी करून देईल काय। राईट अमोर विकेट, फुल टॉस लॉक केलाय, मिड विकेट क्षेत्राकडे हवाई पाया ठोकलाय, उत्तुंग दमदार हा षटकार। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, वहाँ पर फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश कर दिया वहाँ बिलाल शेख ने और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आणि मदर खान यावर्षी जर पाहिलं आपण बिलाल शेख खूप अफाट फॉर्म मध्ये आहे आणि त्यांनी तब्बल 3 अर्धशतक पूर्ण केलेले आहे। कालच्या दिवसामध्ये जेव्हा तो धावाचा पाठलाग करत होता मात्र अतिशय अफलातून उच्च क्वालिटीची फलंदाजी कशाला म्हणतात हे बिलाल यांनी काल सुद्धा दाखवलंय आणि आता सुद्धा दाखवतोय की बिलाल नावाचा फलंदाज काय आहे। अप्रतिम लाजवाब टोलिंग फलंदाजी पाहतोय आपण। धावसंख्या आता मात्र पुढे वेगा सरकते ती मात्र 34। ओसामा सज्ज होताना परत कॉमेंट्री बॉक्स आणि या टोकाकडनं कुठल्याही प्रकारे परिवर्तन नाही आहे फील्ड मध्ये पाहतोय आपण। तो इस वक्त हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए है खाड़ी पार के मशहूर बिल्डर मफू भाई, साथ में साबिर भाई, गुड्डू भाई भी वहाँ पर मौजूद है और पीछे हम देखें तो जावेद आजमी साहब और दस्तगीर भाई। ऐसा लग रहा है कि मानो ये टूर्नामेंट खाड़ी पार में ही चल रहा है।
जिस तरह से यहाँ पर खाड़ी पार के ज़्यादातर मेहमान नजर आ रहे हैं। यावेळेस पात्र वेगवान चेंडू टाकण्याच्या नादामध्ये मात्र स्वेर दिशेला भटकतोय. धावसंख्या मात्र खूपच बाहेर चेंडू होता. पंचाची दुनिया समांतरेषित वाईटचा इशारा होतोय आणि जो उल्लेख केला होता की संपूर्ण खाडीपारचे मान्यवर आहेत आणि खाडीपारचे एक बुलंद आवाज नो डाऊट मजर खान सुद्धा आपण पाहतो की खाडीपार येथून बिलॉंग करतोय. गोलंदाज सज्ज होताना यास्पाता स्वीप करण्याचा प्रयत्न धीम्या गतीचा फसवा चेंडू होता. पहिल्याच वेळेस पाहतो की चांगल्या चेंडूची हाताळणी ते मात्र ओसामा करतोय. एक दमदार तुफानी सुरुवात पाहतोय आपण RD 444 संघाची. एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मात्र RD 444 संघाची एक दमदार सुरुवात. मदर खान सर मी तर निश्चित सांगितलं की अजून सामना संपला नाहीये. या षटकाच्या काही चेंडूवर एखादा जर इथं मात्र ब्रेक थ्रू मिळाले तर मात्र पॉइंटर संघ पलटून वार करू शकतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ब्रेक थ्रो दिलाना हुआ, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी बहुत ही आला दर्जे की देखने को मिल रही है. उसी बीच यास्पात मनगटी फटका टर्न केले चेंडूला मिडविकेट क्षेत्राकडे. तोपर्यंत मात्र संधी होती सहज अतिशय वेगात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय. संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना पाहतोय आपण बिनबाद. देखिए यहाँ पर अब मफ्फू भाई ने इनाम भी लगा दिया है. उसामा अगर यहाँ से विकेट निकालते, पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हैं पॉइनियर स्पोर्ट्स को, तो मफ्फू भाई की तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. धावसंख्या 36. पहिल्या विकेटची प्रतीक्षा अजून असेल पॉइनियर संघाला. संघाने एक वारंवार चांगलं परिवर्तन करतोय पण अपेक्षा त्यांच्या हातात येत नाहीये आणि कुठला गोलंदाज असेल की ब्रेक थ्रू मिळून देईल. सज्ज होताना फलंदाज खेळण्यासाठी या पात्र फ्लिकचा फटका उत्तुंग हवाई मार्ग चेंडू जाईल मिडविकेटच्या वरतून ठोकलाय. अजून एक षटकार. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है. देखिए किस तरह से वहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश कर दिया है. वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 42 रनों पर. मदर खान जर पहिला पण यावर्षीच्या हंगामामध्ये नंबर 1 संघ कोण आहे पाहतोय आपण RD 444 आणि संघाने दाखवले की यावर्षीचा हंगाम आमच्यासाठी खूपच चांगला आहे आणि अप्रतिम उच्च कोटीचा प्रदर्शन पाहतोय आपण या संघाचं. ज्या प्रकारे त्यांच्या मनात एकच असते की संघ कुठलाही असो पण आमचा जो खेळ आहे हे दाखवतोय. तर मात्र बिलाल आणि एक युवा फलंदाज तो म्हणजे अक्षय कासार. जी बिल्कुल सही कहा आपने. दिखा दिया वहाँ पर RD ने कि क्यों वो नंबर 1 पर इस वक्त बरकरार है. जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बिलाल शेख और अक्षय कासर द्वारा. पण आजच्या दिवसामध्ये आपण धनेश इलेव्हन संघाचा संघनायक महेंद्र मागे यांचा जो मनोगत ऐकलं त्याचं म्हणणं व्यक्ती असं असतो की सामना कुठलाही असो हारजीतचा खेळाचा भाग आहे. याच पात्राहूनचा असा फटका विकेट प्राप्त होईल काय आणि आता मात्र नशिबाची साथ सुद्धा मात्र RD या संघाकडे पाहतोय आपण अक्षयकडे आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती अतिशय वेगात. या 2 धावा पूर्ण करतोय. काय म्हणशील मदर खान, ज्या प्रकारे उंच चेंडू होता एवढं सोपं नाही हा झेल टिपण्यासाठी. जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ऊपर इस गेंद को खेल बैठे थे वहाँ अक्षय कासर. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर इस गेंद को खेला था. वहाँ क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी और बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी थी. काफी वक्त तक गेंद ऊपर रही थी. वहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ रसम द्वारा. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 76 धावचा टार्गेट स्वीकारताना RD 444 संघाची अतिशय दमदार सुरुवात आहे. कारण की पहिल्या 3 षटकापर्यंत पाहतोय आपण 44 धावा कुठल्या प्रकारे विकेट फेकल्या गेले नाही आणि येणाऱ्या 3 षटकामध्ये मात्र काय पॉइनियर संघाचे गोलंदाज पलटून वार करेल हे पाहणार आहोत. हे पाहू शकता आपण मॅच समरी. प्रथम पॉइनियर स्पोर्ट्स संघ फलंदाजी करताना 6 षटकामध्ये 75 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पूर्ण केलं होतं. 76 धावचं टार्गेट उभं केलं. त्यानंतर मात्र पाहतोय की 3 षटकानंतर 44 बिनबाद म्हणजे दमदार सुरुवात. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल पण या इनिंगमध्ये आपण परिवर्तन करूया. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया पुढचं धावता होणार मदर खान यांच्या माध्यमातून. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार सर. तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नजर आता हुआ RD 444 का 44 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे. जहां पर बिलाल शेख ने अब तक 3 सिक्सर लगाए तो अक्षय कासर ने 2 सिक्सर. ओवर की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 13 और तीसरे ओवर में 17 रन. अब देखना यहाँ से विकेटें निकालनी होंगी और गेंदबाजी के लिए फाइक अंसारी को बुलाया गया है. धावाचा आलेख मात्र उंचावत चाललंय. ज्या प्रकारे 76 धावाचं टार्गेट आहे आणि इथं मात्र एक जबरदस्त सुरुवात पाहतोय आपण विनोद पाटील फॅन टीम RD 444 संघाची.
देखिए यहाँ पर कुछ लेखा जोखा अब तक बताया है साहिबा मोमिन सर ने कि शुभम गुलवी जिन्होंने अब तक 100 रन बनाए और बिलाल शेख के जो अब तक रन हुए हैं 84 रन। तो दूसरे नंबर पर इस वक्त बिलाल शेख है, जबकि इस टूर्नामेंट में अब तक 100 रन बना चुके हैं शुभम गुलवी। गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए फाइक अंसारी को बुलाया गया है। शिवास स्पोर्ट्स के शुभम गुलवी जिन्होंने अब तक 100 रन बनाए और बिलाल शेख 18 गेंदे और 32 रन। फाइक पहली गेंद वहां पर फाइक की और इस गेंद को तो भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद वहां फाइक की और सिक्सर से स्वागत किया गेंदबाज का। क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ एक बार फिर से बिलाल शेख के बल्ले से। अतिशय सुरेख देखना फटका पाहिला, पण एवढा अगोटपैकी चेंडू नव्हता. मजर खान बॅकफुटला जाऊन मात्र अतिशय क्लास हा फटका आणि स्कोरलीच्या वरतून ठोकलाय अजून एक उत्तुंग षटकार. म्हणजे असं वाटतं की षटकाराचा पाऊस पडताना बिलाल शेख नावाचा हा फलंदाज या इनिंग मध्ये आणि यावर्षीच्या हंगामामध्ये 3 वेळेस त्यांनी अर्धशतक पूर्ण केलेले आहे आणि अजून मात्र इथं चांगली फलंदाजी करताना पाहतोय. जी बिल्कुल, अब तक 4 सिक्सर लगाए बिलाल ने और एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर फाइक का। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया इस गेंद को। देखना है वहां उसामा मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया उसामा ने। उसी बीच तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। थोड़ा सा ये रिस्की रन रहा था और वैसे भी वो कहते हैं ना सुनील सर के, क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। इन 2 रनों की मदद से इसको आगे खिसकता हुआ 52 रनों पर। आणि जिथं मजर खान याला म्हणतात चौपेर फटकेबाजी. जसा चेंडू त्या प्रकारे प्रहार पाहिला आपण प्रत्येक एरियामध्ये बिलाल शेख धावा बनवतोय. डाव्या एष्टीवर चेंडू जर भेटला तर मात्र ऑनसाइड कडे धमाका आणि थोडासा उजव्या एष्टीच्या जर बाहेर चेंडू भेटला स्क्वेअर कट ड्राइव ऑफ ड्राइव प्रत्येक फटके त्याच्या बॅटमधून पाहतोय आपण. बिल्कुल ग्राउंड के चारों तरफ रन बटोरे वहां बिलाल शेख ने। उसी बीच एक बार फिर से वहां पर देखना है अच्छी फील्डिंग रही इस बार वहां पर रसम द्वारा। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद ये होती हुई। स्कोर हम देखें तो अब तक 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फाइक अंसारी अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही जाकी, जबकि पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगा, उसके बाद 2 रन और ये अच्छी गेंद डॉट गेंद। एक बार फिर से सामना करते हुए बिलाल शेख। इस बार देखना है वाडिश मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला है और कोई मौका नहीं, ये गेंद भी चले गई ये बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इस गेंद को खेला है। लगभग छठे स्टंप की ये गेंद थी, उससे खींच के मारा है वाडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। अतिशय सुरेख शॉट पाहिला आपण, ज्या प्रकारे हा शॉट खेळला गेला आणि आक्रमण काय आहे हे दाखवते तर मात्र बिलाल शेख. आणि संघात धावसंख्या जर पाहिली आता मात्र खूप वेगात पुढे सरकते ती. तब्बल जर पाहिले आपण 58. आता मात्र इथं मात्र अंतिम फेरीत स्थान पक्क करण्याचा प्रयत्न जो सुरू होता तो पक्क झालाय असं वाटते आपल्याला. RD 440 या संघाचं क्लास फलंदाजी पाहतोय आपण. एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला और कोई मौका नहीं वहां पर, गेंद चले गई इस बार 4 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है बिलाल शेख द्वारा। ये देखिए किस तरह से यहां पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है। 102 रन अब हो चुकी है बिलाल शेख के इस टूर्नामेंट में और इस वक्त 42 रनों पर बल्लेबाजी करे बिलाल शेख। आणि पाहायचं की लागोपाठ दुसऱ्या सामन्यात दुसरं अर्धशतक पूर्ण करतोय. काय काय कडक फलंदाजी पाहतोय आपण. म्हणून किंग ऑफ ब्युटी टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख. 62 रन। अब यहां से स्कोर जो चाहिए 14 रन और चाहिए, जबकि 42 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बिलाल शेख। उसी बीच वहां पर देखना है नीचे बैकलिप से इस गेंद को कवर की दिशा में ढकेल दिया है। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रन।
13 धावेची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी आणि लागोपाठ दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक पूर्ण करेल काय बिलाल शेख पाहायचे, कारण की ज्या प्रकारे या सामन्यात पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण केलं होतं आणि क्लास फलंदाजी, असं नाही की फक्त आक्रमण करतोय, ज्या प्रकारे चेंडू पाहतोय की ज्या स्थितीमध्ये त्या प्रकारे ड्राईव्ह करताना आपण पाहिलं, स्क्वेअर कट, ड्राईव्ह, कव्हर ड्राईव्ह, ऑफ ड्राईव्ह, ऑन ड्राईव्ह, प्रत्येक फटके बिलाल शेखच्या बॅटमधून आपण पाहिले आणि त्याच फटकेबाजीमुळे तो आता मात्र व्यक्तिगत 43 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. 15 चेंडू 43 म्हणजे एक धमाकेदार डाव साकारताना. देखिए अब यहाँ से जो रन चाहिए 12 गेंदे और 13 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. आज के दिन का जो पहला मुकाबला था आपको तो पता है कि सुपर ओवर में वो मुकाबला चले गया था, जहाँ पर सुरेश इंटरप्राइजेस को भी 12 गेंदों में 13 रन चाहिए थे और वो 13 रन नहीं दिए थे बंटी के गेंदबाजों ने. अब देखना है कि पॉइंटर के जो गेंदबाज है 13 रन देते हैं या नहीं देते हैं. राहिल शेख एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है उन्हें. बिलाल शेख जो कि अब 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे, 12 गेंदे और 13 रन. राहिल इस बार देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ है और गेंद जाएंगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. एक बार फिर से बहुत खूबसूरत स्ट्रोक वहां लगाया बिलाल शेख ने. अतिशय क्लास शॉट पाहिला आपण परत एकदा. मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेले चौकार आणि मात्र 47 या धावसंख्येवर पाहतोय. 16 चेंडूचा सामना केलाय आणि लागोपाठ बॅक टू द बॅक दुसरा अर्धशतक इथं मात्र बिलाल शेख पूर्ण करेल काय. कौतुक करावं तेवढं कम आहे या महान टेनिस खेळाडूचं, ज्या प्रकारे इथं मात्र अप्रतिम लाजवाब फलंदाजी करतोय. बिल्कुल अगर होता है तो सीजन का ये 16वां रहेगा और बिलाल शेख का चौथा अर्धशतक रहेगा. अब यहाँ से बिलाल शेख इस वक्त 3 रन और दूर है, इसीलिए तो इन्हें नाम दिया गया है भाभी सर ने किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट. बिलाल शेख एक बार फिर से वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. और इसी के साथ बिलाल शेख का अर्धशतक पूरा होता हुआ. क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है बिलाल द्वारा. रेकॉर्ड पाहतोय आपण लागोपाठ बॅक टू द बॅक दुसरा सामना सुद्धा 50 धावा इथं मात्र बिलाल शेखच्या पूर्ण होतात. काय लाजवाब फलंदाजी पाहतोय आपण. बॅकफूट पंच केला होता परत पॉइंटच्या डोक्यावरतून. इस बार फ्लिक किया ऑन साइड की दिशा में, अकबर वहां मौजूद है और इस बार बिलाल शेख की पारी समाप्त होती हुई. इस वक्त जैन खान की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है बिलाल शेख के लिए. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 51 रनों की धुआंधार पारी खेली और अब आउट होकर वापस लौटते हुए ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया था उस गेंद को और डीप में अकबर शेख ने कोई गलती नहीं की. ये देखिए किस तरह से लोअर फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर ये गेंद आ रही थी. तो पहला विकेट इस वक्त गिरा है बिलाल के रूप में, लेकिन बहुत बढ़िया शुरुआत और अच्छी बल्लेबाजी करके अब वापस लौटे बिलाल शेख. अब यहाँ से जो रन चाहिए सिर्फ 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. देखिए बिलाल ने तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन हम अक्षय कासर की भी बात करेंगे. उन्होंने भी बहुत बढ़िया साथ दिया यहाँ पर बिलाल का. जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत दिलाई थी. नए बल्लेबाज अब शाम चौधरी. इस बार अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था राहिल शेख ने. कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर. देखना यहाँ पर विकेट तो जरूर निकाला है राहिल शेख ने कि अपनी टीम को अब वापस मैच में ले आते. अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए 5 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई 8 गेंदें और 5 रन. एक बार फिर से राहिल शेख. इस बार देखना है कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर अकबर शेख. एक बार फिर से वहां पर, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. स्कोर इस एक रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 72 रनों पर. 7 गेंदें बची हुई है, जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 4. अक्षय कासर बहुत बढ़िया साथ दिया है उन्होंने बिलाल शेख का. इस बार सामना करते हुए राहिल शेख का. इस बार बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रही थी ये गेंद राहिल शेख की. वही कारण था कि इस गेंद को वाइड करार दिया गया वहां पर एम्पायर शानुक कुरैशी द्वारा. 1 रन और आता हुआ स्कोर में. स्कोर अब 73 पर जा पहुंचा है. अभी भी यहाँ से 7 गेंदें पूरी बची हुई, लेकिन जो रन चाहिए अब वो कम हो चुके. 3 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अक्षय कासर ने.
तो ओवर की समाप्ति होती हुई अब यहाँ से 6 गेंदें बची हुई और रन चाहिए 3। तर आता मात्र अंतिम षटकामध्ये सामना जिंकण्यासाठी 3 धावेची आवश्यकता आहे आणि हे बाद होण्यापूर्वी मात्र लागोपाठ दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक ठोकलं होतं बिलाल शेख यांनी आणि असं वाटलं होतं की मजर खान पवनेर संघाचे गोलंदाज एक टफ फाईट करेल, पण ज्या प्रकारे बिलाल शेख यांनी फलंदाजी केली पूर्णपणे सामना RD 444 या संघाकडे नेऊन ठेवले आणि इथून मात्र जर चमत्कारी गोलंदाजी केली मात्र सामना अजून जिंकू शकतोय पवनेर संघ। पण समोर आहे संघनायक श्याम आणि एक युवा फलंदाज तो म्हणजे अक्षय कासार। जी बिल्कुल, यहाँ से अब चमत्कार वाली गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि रन हम देखें तो अब यहाँ से 3 रन चाहिए। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में बुलाया गया माजिद बोबड़े को, 6 गेंदें और 3 रन। श्याम चौधरी वहां पर सामना करेंगे माजिद का। यानंतर आपण दुसरा सेमीफायनलचा सामना पाहणार आहोत धनेश 11 विपक्ष सुरेश एंटरप्राइजेस या दोन्ही संघादरम्यान आणि परत नाणेफेकीचा कॉल मात्र धनेश संघाच्या बाजूने गेले आणि त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। माजिद गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए 6 गेंदें और 3 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर माजिद की और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया और फाइनल में इस वक्त पहुंचती हुई RD 444। So congratulations Vinod Patil, Bharkya Patil and Bunty Shilke and RD 444. Hard luck Altaf Bali sir and hard luck Pioneer. Hello. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख, 18 गेंदे 51 रन। और तमाम हमारे मेहमान जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जुड़ जाना है। जावेद मोमिन, अनवर खान, मफ्फू बिल्डर और साबिर शेख, आप चारों को जुड़ जाना है। अनवर खान, जावेद मोमिन, मफ्फू बिल्डर और साबिर शेख। बिलाल आपको आगे आना है। व्हाट इनिंग ही प्लेट। देखिए भिवंडी सिटी क्रिकेट में जो रिकॉर्ड है वो बिलाल के नाम ही है। एक सीजन में 6 अर्धशतक का 2016-17 का जो सीजन था उस सीजन में बिलाल शेख ने 6 अर्धशतक जड़े थे और इस सीजन में अब तक 16 में 4 लगा चुके। वेल प्लेड, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। सभी मेहमान आपको आना है। वेलकम बिलाल। आइए सबसे पहले हम मफ्फू भाई के हाथों से आपको albeck.com का ये वाउचर दे रहे हैं, फ्री रात का खाना। अब गिफ्ट हैम्पर और न्यू मारिया मेडिकल का 12% डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। उसके बाद ये आपको डिनर का कूपन दिया जा रहा है। 2 जमा करो, बीवी को लेके जाओ साथ। 2 जमा हो चुके हैं ना बिलाल? यस। और ये अमीदुज़्ज़मा न्यू मारिया मेडिकल की ये ट्रॉफी जो आपको याद दिलाएंगी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बिलाल शेख। देखिए भिवंडी तालुका की सबसे खास बात यह है, ऐसा नहीं है कि मैंने नाम दिए, लेकिन काम उन खिलाड़ियों का बहुत अच्छा है। कोई भी हो, भावेश पवार हो, आप हो, लेकिन बिलाल ये बताइए कि इस सीज़न में आपके बल्ले में रनों की भूख कुछ ज़्यादा लग रही है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो क्लास है आपका जो उभर कर रहा है,
इसके पीछे क्या रीज़न है? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्रिकेट को टाइम दे रहा हूँ ये साल, जिसकी वजह से बैटिंग हो रही है। टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो क्या लगता है फाइनल में फिर से आप पहुंचे, टीम को क्या मैसेज रहेगा आपका? और मैं स्पेशली रजी भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बार उन्होंने खुद अपने से बैट बना के मुझे दिए कि बोले ये साल तू ये बैट से खेल और बैटिंग करेगा इंशाल्लाह। रजी सुन रहे होंगे आर के फ्रीड। एक आखिरी सवाल, ये मैन ऑफ द मैच और 50 को आप किसको डेलीकेट करेंगे? ये मैन ऑफ द मैच और 50 मैं मेरी अम्मी को डेडिकेट करना चाहूँगा। अलबैक का खाना ज़रूर खाइए, लेकिन भाभी के साथ। ये थे बिलाल शेख। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। जैन खान के 500 रुपये हैं। यस, देखिए जैन खान के 500 है, ये 5000 के बराबर है। वेल डन बिलाल। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। दो पायदानें बची है इस वक्त इस लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 की। खेल की शुरुआत होती हुई टॉस को जीता है पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और विश्वास पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे ने। देखिए विश्वास पाटिल साहब हमारे बीच में है, लोगों में जिनकी छवि है खास, वह है अपला विश्वास, जिन्होंने तालुका क्रिकेट को एक बड़ा कप दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको हमारे मंच पे आना है। माजी सरपंच वाशेरे विश्वास पाटिल। बैक टू क्रिकेट नाउ। टॉस को जीता धनेश कुकसे ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। आरडी 444 फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अमीदुज़्ज़मा एंड ब्रदर्स, अमीदुज़्ज़मा प्रेजेंट एंड अमीदुज़्ज़मा एंड ब्रदर्स ऑर्गेनाइज। लेकिन एक बात तो है कि इसमें जो